Greetings of the day. This is Dr. Sandhya Kumari Singh on behalf of Public Police NGO, having a background in education, writer and social worker who believes that right education and curriculum can change the society for betterment. Previously, we have discussed on uniform civil code and women's safety and security. But today we are here with our esteemed guests on panel to discuss on a very important topic which has been a part of their life too. That is women empowerment and parenting, which has also made them reach where they are today. So we have with us today Kanika Maheshwari ji, who is an Indian television actress for the past 20 years. She learned performing arts and experimented her talents. She was encouraged by her teachers and mentors to find her place in Mumbai and create a niche for herself in the industry. Kanika did just that with her streak of award winning roles and shows over the years. Known for her hard work, punctuality, and persistence, her cheerful spirit brings new shades to life. She is well known for her roles in serials like कहानी घर घर की, राजा की आएगी बारात, कभी आए न जुदाई, विरासत, गीत हुई सबसे प्यारी एंड दिया और बातें हम तू सूरज मैं सांझ प्याजी. Her latest show is called Dil Diya Galla on Sony Live. She also directed a short film called Forever Whim, for which she was appreciated all over the world. Kanika has also won 10 television awards. So today our guest is a very special person who has explored herself and has established herself in the television industry. Find your passion, focus on it, be honest, work hard, and see how life unfolds. Such is our next guest on panel, Dr. Bharati Taneja, founder and director, Alps Beauty Group, industry veteran, beauty expert, and cosmetologist, popularly known as the Golden Lady for introducing the 24 karat gold facial, a visionary first to introduce the concept of beauty clinics in India, a pioneer introduced latest technology in makeup and beauty care in the country, a leader, a founder of Alps Academy, a philanthropist, president of Beauty Products Council at Chamber of Trade and Industries. Awards and honors, there is no limit where such awards and honors are there. Women Achievers Award conferred by the President of India, Mr. Pranab Mukherjee. World Book of Records, UK, Dronacharya Award, the Gold Award for SEMES Director, the Lifetime Achievement Award, the Millennium Award, and the award list of awards is very long. And again, I think more than 20 awards are to her credit. When you empower a woman, the whole family prospers. That's the belief and motto on which Mrs. Dr. Bharti Taneja has always worked on. Established as Golden Lady, beauty expert, distinguished laureate, and an Ayurveda Acharya, she holds the vision with a mission. Alps Banaye Atmanirbhar is her foundation for which she is well known. She has worked with the Bollywood stars and has achieved a lot in her own field, such as Madhuri Dixit to Sushmita Sen, and has crafted some marvelous looks for top Bollywood stars. An educationist and a dignified speaker for past 20 years. She has also been a mentor at many places of repute. She has over 5 lakh students she has benefited by attending her seminars. She is into media. She has done a lot in the media too and believes in sharing her knowledge and experiences with other women and help them dream big and beautiful. The list of her achievements are never ending and due to scarcity of time it will be very difficult to describe her personality in just few lines. Now another celebration and celebrated figure we have is the bee creation and bee celebration, which is founded by Miss Babita Khanna in October 22 to give healthy fragrant option to its connoisseur customers. Babita has done her BSc in Electronics from Delhi University and MBA from Faculty of Management Studies, Delhi.
She has got 20 years of vast experiences in marketing, brand building, brand communication, and has worked for companies like Hewlett Packard, Ericsson, and Vodafone, etc. Babita has received certificate of appreciation for significant contribution in achieving ISO 9001 in February 2000 from STM Microelectronics. Babita is a well traveled person who has achieved a lot and has innovated scented candles. And once she brought bee wax candles from Canada and really loved the subtle natural fragrance of bee wax. And that is how she went into manufacturing and is an entrepreneur today. Next on panel is Mr. Vimal Vakliju. We are very familiar, and I think he needs no introduction because he has been on the platform many a times and is constantly working. He is the chairman and managing director of Telecommunication Consultants India Limited, a Government of India enterprise, past president of the Telemedicine Society of India, and the ex-board member of International Society for Telemedicine and E-Health. He has more than 46 years of experience in the field of telecom and information technology. An expert in focus group on artificial intelligence, which is a very upcoming thing, and our president, our prime minister, Mr. Modi ji, are constantly working on artificial intelligence promotion. He has been instrumental in the successful implementation of the prestigious Government of India's Pan African E Network project, a project envisaged by Dr. APJ Abdul Kalam, the former President of India, providing a platform to 48 nations in Africa to India for education and health services. So, on this evening, we have a very important topic, that is women empowerment and parenting. My question is directed to Kanika Maheshwari ji, because parents are the primary influences of a child, creating an enabling environment. So, how do you see, Kanika? How was your childhood, and how did your parents become instrumental in making you reach where you are today? First of all, thank you so much, Doctor, because for giving me such a nice introduction. Thank you so very much. बहुत अच्छा लगा आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया. Uh, ये आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि किसी भी चीज को अगर हमें बात करनी है तो रूट कॉज पे जाना होता है, और वो है रूट है पेरेंटिंग. डेफिनेटली मेरे फादर मिस्टर आर के महेश्वरी इज देयर राइट नाउ, तो मैं उनकी तारीफ में कुछ तो बोलूंगी ही, बिकॉज माय फादर इज माय हीरो, and whenever I'm in crisis, like the one person I go to him. मेरी पेरेंटिंग बहुत ही सरल तरीके से की गई है. हम जिसे कह सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली हमें बड़ा किया गया है उस तरीके से, जहाँ पे वैल्यू सिस्टम ज्यादा सिखाया गया है. और मुझे आज भी याद है कि अगर मैं कोई भी गलती करती थी तो मेरे मेरे माता पिता मुझ पे हाथ ना उठाने के बजाय मुझे बिठाकर समझाते थे कि तुमने आखिर ये क्यों किया. क्योंकि कोई भी चीज करने के लिए एक बीज होता है कि तुमने क्यों किया. बच्चे बढ़ते हैं, और हमेशा मुझे बहुत सारी सुंदर कहानियों के साथ में बड़ा किया गया. कभी भी मुझे लड़की और लड़के में फर्क नहीं बताया गया, क्योंकि जब हम अपने देश में लड़कियों को लड़कियों की तरह पालते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं लोगों से वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है. कभी अपने पिता से, कभी अपने भाई से, कभी अपने दोस्तों से, या कभी अपने पति से, या कभी अपने बेटे से वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है. लेकिन मुझे कभी भी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई वो कभी भी इस तरह से नहीं हुई कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें इस तरह से करना चाहिए, उस तरह से करना चाहिए. कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, कोई डूज और डोंट्स नहीं थे. बहुत ही लिबरल तरीके से मेरे माता पिता ने मुझे पाला है, मेरी हर बात को सुना है. आई एम ऑलवेज हर्ड. और मुझे इस वक्त व्हेन आई एम 42 इन माय लाइफ, आई डोंट थिंक दैट की जरूरत है, क्योंकि already we are such a strong feminine energy. God has designed us in a beautiful way कि that हमारा कंपैरिजन असंभव है. हम नहीं लोग कर ही नहीं सकते. वी आर मल्टीटास्कर्स, वी आर नर्चर्स. हम नर्चर कर सकते हैं, हम घर का काम कर सकते हैं,
हम बाहर का काम कर सकते हैं, हम एक लाइफ देते हैं। तो मेरे लिए विमेन एम्पावरमेंट का प्रश्न नहीं उठता। मुझे ऐसा लगता है दैट वी आर जस्ट बॉर्न वेरी इक्वल। मेरा यस। चाइल्डहुड बहुत अच्छा निकला था, दैट्स व्हाट आई कैन से, बहुत सुंदर। कनिका जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं और जो उनकी ब्रिंगिंग होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एंड लॉन्ग आर द डेज गॉन, इतना हम दौर हो चुका है कि विमेन पावरमेंट चाहिए, बट उसको इतना ज़्यादा अगर हम ब्रेन्स में डाल देंगे कि विमेन जी एम्पावरमेंट, एक नेचुरल अपब्रिंगिंग में बच्चे को नई परवरिश देंगे, तो हर समय एक बॉय के भी माइंड में रहेगा कि हम मेल हैं, और एक लेडी को भी ये रहेगा कि हम फीमेल हैं। तो जो स्टिग्मास होते हैं या जो रूल्स होते हैं सोसाइटी के या घर के, तो हम क्या है फिर उसी तरीके से पेरेंटिंग करते हैं। तो अगर पेरेंटिंग में पेरेंट्स ने कभी महसूस नहीं होने दिया कि आप विमेन हैं या आप मेल हैं, और पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया कि आप ह्यूमन बीइंग्स हैं, आप में इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं, हम उसको तराशेंगे, हम उसको जी सपोर्ट करेंगे, एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर हेयर। अदरवाइज बिकॉज आप जिस इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं एंड आपके जो पेरेंटल की जो बैकग्राउंड है वो टोटली डिफरेंट है। वो एक जी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आप एक एक्ट्रेस में एक्ट्रेस फील्ड में हैं, जहाँ यू हैव क्रिएटेड अ नीश फॉर योर सेल्फ। आपको इट वुड नॉट हैव बीन एन ईजी टास्क to choose a career which was away from the normal parenting in a job oriented or such kind of fields। तो पेरेंट्स ने जो आपको सपोर्ट दिया, कभी फील नहीं होने दिया, और वो जी ही इम्पोर्टेंट है। एंड समाज जो क्या कर रहा है, जो मुझे भी लगता है, एंड जब हम लोग देखते हैं समाज को, तो जनरली क्या होता है कि बच्चे के साथ उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी। यू आर अ गर्ल, यू कान डू दिस, यू आर अ बॉय, यू हैव टू बिहेव लाइक दैट। तो वो चीज़ जो यस है पेरेंटिंग के अंदर, जब तक पेरेंट्स इतने एनलाइटन नहीं होंगे एंड जब तक समाज इतना एनलाइटन नहीं होगा कि ये एक बच्चा है और बच्चे में बहुत क्षमता होती है, हर बच्चा एक नया क्षमताओं के साथ भगवान ने उसको नवाजा है इस पृथ्वी पर। तो अगर हम उस चीज़ को नहीं पकड़ के बच्चे को ग्रो करेंगे, तो डेफिनेटली देर आर बाउंड टू बी हेजिटेशंस। तो जी आपके, फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू आस्क यू कि टेलीविज़न इंडस्ट्री में आप हैं, आपने 20 साल यहाँ काम किया, आपने एक बहुत ही डायरेक्शन, एक डायरेक्ट फिल्म को भी डायरेक्ट किया है, लिखना और उसके साथ भी रहना। तो आपके लिए मतलब क्या चैलेंजेस थे एज अ वीमेन, क्योंकि आपके पेरेंट्स का जो बैकग्राउंड है तो आपको वहाँ तक पहुँचाया, तो वहाँ पर तो आई थिंक यू गॉट द सपोर्ट ऑफ योर पेरेंट्स। बट जब जी आप एक वर्किंग नेचर में जाते हैं, सो वर्क में द मेल ईगोज आर अ वेरी बिग बैरियर कि वाई अ फीमेल इज़ बीइंग सो सक्सेसफुल, एंड एक फीमेल जो है वो उनको कैसे सरपास कर पा रही है इतना टैलेंट होने के बावजूद। एक्चुअली जो जिस फील्ड में मैं हूँ, टेलीविजन इंडस्ट्री इज एक्चुअली मेन स्ट्रीम विमेन ओरिएंटेड है, जहाँ पे सास का काम ज्यादा है, बहू का काम ज्यादा है, बेटी का काम ज्यादा है। मतलब ससुर, पति और ये सारे लोग पीछे होते हैं। हम लोग ज्यादा काम मिलता है, ज्यादा डेज जाते हैं, और हम ज्यादा पैसे भी कमाते हैं उनसे, हमारे पर डेज भी ज्यादा होते हैं। पर जो आप ये बात कह रहे हैं कि डेफिनेटली कंपैरिजन्स होते हैं, कभी कभी हमने मेल ईगोज को इन डिफरेंट वेज में आते हुए देखा है। बट एक्चुअली एज अ विमेन, मैं मुझे मेरी नर्चरिंग इस तरह से हुई है कि मैं अपनी हर चीज ईगो पे नहीं लेती हूँ। अगर किसी ने किसी तरीके से कोई मेरे से बात कही है जो मुझे ना पसंद आई है, मैं जाकर बात करना ज्यादा पसंद करती हूँ, रादर देन अपने मन में ग्रजेस रखकर। और आई थिंक विमेन, we have such a beautiful feminine energy that if we go and we very naturally talk to the other person, to the masculine energy, I think we have the power to tell them what we actually feel about it. And this is the workplace. We can have a cordial relationship also, because it's not the female who feel that, it's the male who feel, because हम लोग हर तरीके के काम हैं, और हम बच्चे भी पैदा कर सकती हैं, हम घर भी संभाल सकती हैं, हम बाहर भी काम कर सकती हैं, और उसके बाद आने के बाद में भी हम कंप्लेन नहीं करती हैं, सो दैट्स द ब्यूटी इन इट। लेकिन
मेल ईगोज हर जगह, हर फील्ड में है। हमारी फील्ड में देखिए, आप लॉ फर्म्स में देखेंगे, आप बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउस में जाएंगे, लोग ऐसा करते हैं लड़कियों के साथ में, उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, क्योंकि मेल्स को ईगो आ जाती है कि ये लड़की हमसे आगे कैसे बढ़ सकती है, या ये हमें बताएगी। और एक्चुअली ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, जो आपने पहला टॉपिक छेड़ा पेरेंटिंग का, वो घर से ही शुरू होता है। कि अगर घर में जो मदर है, अगर उसका नेचर या उसकी पेरेंटिंग इतनी स्ट्रांग है कि वी आर इक्वल, अगर आप घर में अपनी मदर को इक्वल समझते हैं, अपनी बहन को इक्वल समझते हैं, तो आप बाहर वर्क स्टेशन पे भी जाएंगे तो आपको वो इक्वालिटी दिखनी चाहिए। ये नहीं कि वो मुझसे नीची है और वो तो एक लड़की है, मैं इससे दब के क्यों काम करूं, अब मैं क्यों सहूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें घर से ही अपनी माओ को, अपनी बहनों को इक्वल समझना पड़ेगा, इक्वल टू मदर टू फादर। ये नहीं होना वेरी चाहिए कि नहीं, बहुत बार मैंने देखा है कि घर में अगर मदर ने कोई बात कही है तो फादर कहता है अरे तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, वो हाँ। बाहर काम नहीं करती हैं, शायद उन्हें नहीं पता होगा, वो नहीं अर्निंग मेंबर है, शायद उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन डेफिनेटली एज अ ह्यूमन शी हैज अ राइट टू से, यू कैन नॉट टेक दैट अवे। और कहीं ना कहीं वो मेल ईगो कहीं ना कहीं आ जाती है कि मैं पैसे कमाता हूँ या मैं घर चलाता हूँ, और उसी वजह से वो कहाँ से कहाँ वो ज्वाइन होती है ना डॉट्स, और वो कहाँ तक जाता है वो पता नहीं चलता। तो सबसे पहली चीज हमें अपने घर में सुधार करना है। हर औरत को अपनी एक अपनी जगह, जो वो वैलिडेशन मांगती है, वो वैलिडेशन की हमें जरूरत ही नहीं है। वी आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, वी आर बोर्न दैट वे। दैट्स व्हाट आई कैन से। वेरी राइट कनिका जी। बिकॉज हमारे अंदर इतनी क्षमता भगवान ने पैदा करी है कि एट टाइम्स आई फील कि कुछ एस्पेक्ट्स वेमेन के काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेंटल इमोशनल फिजिकली यस, दे मेल मे हैव मोर एनर्जी, बट जहाँ तक मेंटल है, सोशल है, या हमारा जो इमोशनल स्ट्रेंथ है, वो जी। हमारा आई थिंक कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न ओवर पास्ट एराज, मतलब जब से सभ्यताएं शुरू हुई हैं, तो women have been progressing, women have been discovering, एंड ये जो हम लोगों को जो संस्कार दिए गए वो पेरेंट्स से आए, और पेरेंट्स ने उनको स्ट्रॉन्ग बनाया, जो हमारी क्वालिटीज़ थी उनको अपनी नर्चरिंग के द्वारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाए। एंड दैट इज़ द रीज़न कि एम्पावर्ड हैं हम लोग, वी आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। बट प्रैक्टिकली एम्पावरमेंट के लिए अभी थोड़ा सा हमें सोसाइटी को एनलाइटन करना पड़ेगा, दैट लुक वी ऑल हैव स्ट्रेंथ्स, बट हमें उससे थोड़ा सा एज लेके हमें काम करना पड़ेगा। अगर बैरियर्स भी हैं तो हम उसको अपनी क्षमताओं के द्वारा उसको, उन बैरियर्स को हटा के, एंड वी हैव टू fulfill our dreams. So that becomes a very important part of parenting. तो बिल्कुल। कहीं आपको लगा हुआ कनिका जी कि मेरा मेंटल, मेरा इमोशनल या मेरा मेंटल स्ट्रेंथ या फिजिकल स्ट्रेंथ, ये सारे का आपको एक कोऑर्डिनेशन करना पड़ा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप जब वर्किंग में जाते हैं तो इमोशनली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, मेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि challenges are there. How did you groom this? Was it your inner thing, या did your parents help you in those aspects also, या आपके जो ये जो फैकल्टीज़ हैं इनको एम्पावर कैसे किया आपके पेरेंट्स ने? As in, there were difficulties, of course, because I am still my daddy's princess, which was like, Yeah. and the only child of my parents, and very well brought up child. And Bombay, it was I was by myself, and everything was so difficult because आप अगर बच्चों को ऐसा छोड़ते हैं तो वो बच्चा ऐसा हो जाता है कि मैं कहाँ जाऊँ, because I was being so loved, I was in my own cocoon, I guess. But yes, I think with such strong good words and lot of empathy, my parents have, both of them have lot of empathy in nature, और उनके नेचर कहीं ना कहीं मेरे में भी imbibed है, and that's how I went with my journey. इमोशनल सपोर्ट्स के लिए मेरे डैड मुझे कहानियां सुनाते थे, और बहुत बार मुझे गाना भी सुनाते थे कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। बहुत बार Yes. उन्होंने मुझे एक लाइंस दे के कहा कि ये जर्नी है आपकी जिंदगी की, इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और जब डाउन आए तो और मजा है, क्योंकि वो डाउन्स ही, आपके फेलियर्स ही आपको सिखाते हैं, समझाते हैं। एंड
आई थिंक वो बात सुन के मैं अप नबाब होती थी, और आई यूज टू गेट बैक फिजिकल, अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए ऑफ कोर्स आई यूज टू डू गुड एक्सरसाइज, गुड फूड। आई यूज टू डू माइंडफुल ईटिंग, नॉट माइंडलेस ईटिंग। आई डू Yes. माइंडफुल ईटिंग दैट, क्योंकि अगर आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं मेंटल इमोशनल आपकी सिंक्रोनिसिटी रहती है आपके अंदर। uh, आप अगर माइंडलेस खा रहे हैं, आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सैड भी होंगे, इमोशनल भी होंगे, डिप्रेस भी होंगे, बिकॉज ये जो एक्टिंग फील्ड है, ये आपको हर एक्टिंग जॉब्स इतनी जल्दी से नहीं मिलती हैं। बहुत बार आपको बहुत ऑडिशंस देने पड़ते हैं, महीनों ऑडिशंस देने पड़ते हैं, सालों ऑडिशंस देने पड़ते हैं, और शायद में भी एक क्रैक हो पाए। तो रिजेक्शन भी लेना पड़ता है। देयर लॉट मेनी रिजेक्शंस। सबसे ज्यादा रिजेक्शंस हमारी फील्ड में होते हैं कि दैट यू गो गेट ड्रेस्ड, feel the character, you do the audition, and then again rejection. After rejection maybe one selection. So वो strength आप में होनी चाहिए as an actor, even as a human being also. But rejection is a very ego पे आता है, आपकी आपकी ego बोलती है। But I have tried separating my ego with my own self, and that's happening because of my spiritual journey. That's also because of the help of my father. He guided me to the direction of my guruji, and that's how I'm just getting into that zone where emotionally, mentally, I am I'm getting synchronized in a good way, that I can take care of my child and make him a better human being, the way I want a man to be. Maybe that way. Yeah. Right, right. You have a boy child, so definitely all that experiences of your parent nurturing you, जैसे आपके पिता ने आपको परवरिश दी, संस्कार दिए, एक माहौल दिया, तो उसी चीज़ को, क्योंकि मेल चाइल्ड है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम मेल चाइल्ड को Yeah. भी टू रिस्पेक्ट दी फीमेल्स और उस तरीके से ब्रिंगिंग अप करें, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ पेरेंट, कि Yeah. बच्चा जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर ना जाए, एज अ ह्यूमन बीइंग, ट्रीटिंग Yeah. एवरीबडी एज अ ह्यूमन बीइंग जाए। माहेश्वरी जी, बिल्कुल। आई वुड लाइक योर इनपुट टुवर्ड्स योर जर्नी। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बेटी की परवरिश करी और उस फील्ड में वो सक्सेसफुल हैं इतनी, और आज भी वो इतने इम्पोर्टेंट सीरियल्स में वर्क कर रही हैं, उनके रोल्स हैं कि मैं आपसे दो शब्द उनके इतने सारे वर्षों की मेहनत के ऊपर चाहूंगी कि आप बोलें। नमस्कार संध्या जी जी, एंड नमस्कार मैम। अदर पैनलिस्ट। देखिए, टैलेंट कब आपका कब निखरेगा, किस फील्ड में निखरेगा, पता नहीं चलता। जी, जिंदगी में बहुत बार आप बहुत सारी चीजें करते जाते हैं, बहुत सारी चीजों को रिजेक्ट करते चले जाते हैं, क्रॉस करते जा लेते हैं कि ये ठीक नहीं है मेरे लिए, ये ठीक नहीं है। देन आफ्टर एक लेटर स्टेज पे जाके कभी कभी शुरू में लोगों को मिल जाता है, कभी लोग बहुत लास्ट में जाके उन्हें समझ में आता है कि नहीं, ये मेरे लिए ठीक है। तो ये सब जर्नी है जिंदगी की, सब चलती रहती हैं। कब आपको आपका टारगेट मिले और उस पे आप पूरे दिल से काम करो, जी, क्योंकि मेरी जी। बेटी है इसलिए एज ए फादर तो मैं हमेशा ही तारीफ करता हूँ उसकी। शी इज ए वेरी जी, टैलेंटेड। हाँ और जी। अदर panelists are also very talented and we must ask them। मैं एक ही चीज कहूंगा बस कि जी, देखिए, जी, जी, वुमेन एम्पावरमेंट की हमें कभी जरूरत नहीं थी। हमारे सनातन धर्म में हमेशा ही वुमेन्स वर वेरी मच एम्पावर्ड। देखिए आप ये, सनातन धर्म में आप देखिए, दुर्गा है, पार्वती है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, मतलब सभी चीज हम लोगों ने वुमेन्स को ही फॉरवर्ड कर दिया था, उन्हीं जी, को डाइवर्ट कर दिया था। एक्चुअली हमारे उसमें एक मुगल काल आया जिसमें मेल्स जो हैं वो डर गए। उससे पहले नहीं था ये सब कुछ कि हमें वीमेंस वुमेन्स एम्पावरमेंट पे बात करनी पड़े। वो तो इट इज अ गॉड गिफ्ट टू देम, ये गॉड गिफ्टेड है। ये तो जी, मुगल काल में ये क्रिएशन हुआ, जिसमें रियल में बात ये है कि हम मेल जो हैं, मेल्स जो थे सोसाइटी के, वो डर गए थे। उन्होंने जो है फीमेल्स को अंदर बंद कर दिया, उनकी जो बिल्कुल सही। टैलेंट था उसको खत्म कर दिया।
दैट इज द आ, मेन प्रॉब्लम। और जी वो जी चीज जी। हम लोगों को विचारों से खत्म नहीं हुई है। इसी को खत्म करना है, इसी को दिखाना है कि नहीं, हमारा धर्म जो है वो वुमेन्स के लिए हमेशा रेस्पेक्टफुल था, हमेशा रिगार्ड किया है उसने। और मैं ये कहूंगा कि ईश्वर की एक ये अनूठी क्रिएशन है जो फर्दर क्रिएट करती है चीजों को। उसे किसी और चीज को क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। इतनी बड़ी बहुत। क्रिएशन, सृजनात्मक शक्ति दी है मेन को। बस विचार बदलने की जरूरत है सोसाइटी में, अदरवाइज तो देयर इज नो नीड। एक्चुअली करना पड़ेगा, आप सही या कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं। सनातन धर्म में बहुत अगर हम उस युग से बात करें तो हमारे धर्म में हर समय जो नारी शक्ति है उनको कई रूप दिए गए, कई मान्यताएं दी गई, कई उनको उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हर फील्ड में। बस कहीं ना कहीं वो डाउन द लाइन हम लोगों ने मिस आउट हो गए, और उसी को हम दोबारा से लाइव करने की कोशिश है। और आपकी परवरिश जो है वो हमें सामने कनिका जी के रूप में दिख रही है। और अब मैं चाहूँगी धन्यवाद। कि हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही सक्षम विमेन हैं, और डॉक्टर भारती तनेजा जी, जिन्होंने अपने ही इंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी से अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। और जैसा कि मैंने उनका इंट्रोडक्शन अभी शुरुआत में दिया कि उन्होंने ब्यूटी सेगमेंट को एक अलग तरीके से उठाया, एक उसको एक इंडस्ट्री में तब्दील किया, और आज उनके पास चेन्स हैं, और उसके साथ साथ वो सामाजिक सेवा भी बहुत कर रही हैं। उनके अपने एनजीओज़ हैं जहाँ वो ट्रेनिंग भी दे रही हैं फीमेल्स को, ताकि वो वोकेशनल ट्रेनिंग में भी जाएं। तो मैं अब चाहूँगी कि डॉक्टर भारती तनेजा जी कुछ अपने बारे में और बताएं हमें कि उनकी क्या विचार है विमेन एम्पावरमेंट को लेके या पेरेंटिंग को लेके, और उनकी अपनी एक जर्नी क्या रही है, उनके उनको कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिली कि वो आज इस मुकाम पर हैं। डॉक्टर भारती तनेजा जी, प्लीज़। नमस्कार। सबको नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करना, और अच्छा लग रहा है को सुना, और महेश्वरी जी को भी सुना। बहुत बढ़िया बातें उन्होंने की। कनिका जैसे बोल रही थी कि वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है, एक्चुअली स्पीकिंग महेश्वरी जी का कहना बहुत सच है कि विमेन सनातन धर्म में तो हम पहले से हर फीमेल एम्पावर्ड है। तो लेकिन जहां तक विमेन एम्पावरमेंट की बात हम आजकल जो कर रहे हैं, मुझे लगता है ये वो लोग हैं जिनको मौका नहीं मिल पाया, बहुत सारे गांव में हैं, या थोड़े से अनएजुकेटेड जो लोग हैं, उनके अंदर उनको जरूरत पड़ती है विमेन एम्पावरमेंट की। हम लोग तो सारे ही एम्पावर्ड हैं, और बहुत अच्छा सब लोगों ने बताया, मैं भी वही कहना चाहूंगी। लेकिन मेरी जर्नी की अगर मैं बात करूं, तो मैं एक सरदार फैमिली में बिलोंग करती थी, और मैं भी कनिका की तरह अपने पापा की प्रिंसेस, मैं अपनी मम्मी की प्रिंसेस रही हूँ। और क्योंकि मैं मुझे मेरा पालन पोषण मेरे दादा दादी ने किया, उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया था, तो मैं पूरी फैमिली की प्रिंसेस रही हूँ हमेशा। लाडली, अ, चाहे कोई भी हो, ताया जी हो, मम्मी पापा हो, डैडी, दादा दादी हो, सबकी लाडली, नाना नानी की रही। तो हम लोग तो पहले से एम्पावर्ड है, तो मुझे तो हर चीज किसी को एक मिलती तो मुझे चार पांच मिलती थी, क्योंकि हमेशा से बहुत एम्पावर्ड थी, बहुत ज्यादा लाडली थी। लेकिन जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हो, या जब आप अपने पे आते हो, तो तब बहुत सारी परेशानियां जरूर होती हैं। वैसे तो मेरे डैड चाहते थे डॉक्टर बनूं, और मैंने उनका सपना पूरा करा भी। लेकिन पता नहीं, जब शादी हुई, तो जब मैंने सोचा कि मैं अपना कुछ करूं, शादी से पहले मैं टीचर थी। आई वॉज टीचिंग साइंस एंड मैथ्स अप टिल 9 क्लास, एंड मैंने 3 साल पढ़ाया है। तो टीचिंग मेरे ब्लड के अंदर है, और अभी भी मैं टीचर हूँ, बिकॉज वी आर टीचिंग ब्यूटी एट द मोमेंट। लेकिन समहाउ ब्यूटी मेरे अंदर ऐसे बचपन से थी कि जब शादी नहीं हुई थी, तब भी अपने फ्रेंड्स के, अपने रिश्तेदारों के मेकअप करना, उनका हेयर स्टाइल करना, मेहंदी लगाना, ये सब कुछ मुझे बहुत शुरू से अच्छा लगता था। आर्टिस्टिक थी, पेंटिंग बनाना। पहले मैं कैनवस पे पेंट करती थी, अब हम बॉडी पे पेंट करते हैं, नेल्स पे पेंट करते हैं, फेस पे पेंट करते हैं। मेकअप इज अ काइंड ऑफ पेंटिंग ओनली इन अ नाइस वे, अ ब्यूटीफुल वे। तो ये सब मुझे शुरू से बहुत पसंद था, तो इसीलिए 3 साल जॉब करने के, टीचिंग जॉब करने के बावजूद, जब मैंने अपना बिजनेस सोचा, तो मुझे लगा आई शुड वर्क इन ब्यूटी, क्योंकि मुझे लगा, मैं मानना है कि जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है,
अगर आप वो करते हैं तो आप हमेशा ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं वो करूँ जो मुझे पसंद है। तो मैंने ब्यूटी के फील्ड को अपनाया। हालांकि उस वक्त बहुत मुश्किलात थी। लोग ब्यूटी को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते थे। मेरे डैड ने, मुझे शुरू से अच्छा लगता था तो मेरे डैड ने नहीं जाने दिया था इस फील्ड में। लेकिन शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने अलाउ किया कि हाँ हाँ, तुम जो करना चाहती हो करो। और मेरी मदर इन लॉ, तो मैं उनका तो देना दे ही नहीं सकती, बिकॉज शी वाज द वन हु रियली हेल्प मी टू डू वट एवर आई वांटेड। उस वक्त चांस की बात है कि मेरा बिजनेस बिल्कुल डाउन हो गया था। वी डिडंट हैव मनी एट ऑल। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे 2,000 रुपये दिए कि भारती, तुम जो चाहती हो वो करो। मेरे हस्बैंड थोड़ा, उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे बोल रहे थे कि प्रेगनेंसी में मत करो ऐसा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चा हो जाएगा तब कर लेना, क्यों परेशान होती हो। पर मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि कोई परेशानी नहीं है, जो तुम चाहती हो करो, जब चाहती हो तब करो। एंड शी रियली गिव मी अ गुड बूस्ट। उससे ही मुझे फायदा कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे boost किया। हर जो कुछ मैंने जिंदगी में चाहा मुझे करने दिया, एक्सेप्ट ब्यूटी बिजनेस में आने के। लेकिन मेरे इन लॉज ने और मेरे हस्बैंड ने बहुत साथ दिया, बहुत। अगर वो साथ नहीं देते तो शायद मैं जो आज कर पा रही हूँ मैं कभी नहीं कर पाती। मेरे हस्बैंड ने मेरा शुरू में जरूर मना किया था बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। लेकिन बाद में मेरा पूरा पूरा साथ दिया। मेरी हेल्थ बहुत खराब रहती थी, ये बात तो मानिए कि बच्चा होने के बाद तो मेरी हेल्थ और भी खराब थी, इतनी खराब थी कि मैं खड़ी ही नहीं हो सकती थी, चल नहीं पाती थी। तो उस वक्त मेरा जो विल पावर है उसकी वजह से मैं चल पाई, मैं खड़ी हो पाई। मैं रिवॉल्विंग चेयर पे बैठती थी, मैं क्लाइंट को रिवॉल्विंग चेयर पे बिठाती थी और उनका काम कर देती थी। और कैसे भी मतलब मुझे शुरू से था कि जो मन में आ गया वो तो करके ही रहना है, और मैं कर लेती थी। तो ये मेरे पेरेंटिंग की बात अगर आप कर रहे थे तो मैं जरूर कहूंगी कि ये जो विल पावर और ये जो नॉलेज, मेरे डैड ने मुझे शुरू से कहा कि खूब पढ़ना है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में कभी किसी का मुंह ना देखो, अपने ऊपर तुम्हारा आत्मनिर्भर होना जरूरी है। तो उन्होंने भी मुझे बहुत ही अच्छी पेरेंटिंग दी। और लड़की होने की बात आप बीच में करी थी तो मैं उसका भी जरूर इन बिटवीन बात करना चाहूंगी कि बीइंग अ गर्ल मुझे तो ये कहना चाहिए कि सबसे ज्यादा प्यार मिला, भाइयों से भी ज्यादा। मेरे भाइयों को परेशानी होती थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्लास में भी अच्छी थी, हर चीज में अच्छी थी, तो उनको लगता था बस इसी को सब प्यार मिलता है। तो शुरू से मुझे सब उन्होंने ज्यादा प्यार दिया। और उसके बाद मेरी भी दो बेटियां हैं। तो जब मेरी सेकंड बेटी हुई तो तब मुझे लोग बोलते थे कि हो, तो फिर से बेटी पैदा हो गई। लेकिन आई एम रियली प्राउड ऑफ बोथ द डॉटर्स। मैंने उनको भी उतने ही अच्छे से पाला है जैसे फूलों की तरह पाला है, और दोनों बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है पेरेंटिंग डेफिनेटली मैटर करती है। और लड़की होना तो बिल्कुल, जैसे कनिका बोली थी, मैं बोलती हूँ हम लोग सारी दुनिया के काम कर सकते हैं। हम लड़कों से किसी भी हाल में कम तो मतलब ही नहीं है, हम उनसे ज्यादा अच्छे हैं। हम लोग मल्टीटास्कर्स हैं, हम लोग सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। और मैं तो हमेशा से मल्टीटास्क कर रही हूँ। मुझे शुरू से आदत थी कि मैं एक टाइम पे दो काम या तीन काम इकट्ठे करती हूँ। मुझे ये वो सब फटाफट फटाफट करने की आदत है, हर काम बहुत ज्यादा तेजी से, और बहुत सारे काम इकट्ठे करने की आदत, दिन रात मेहनत कर सकती हूँ। तो शुरू से मेहनत करने की आदत है। बच्चे को पालना, और फिर उस साथ में बिजनेस करना, घर का ध्यान रखना, तो सब एट ए टाइम आई कुड डू इट बिकॉज ऑफ दैट ओनली। तो मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावर्ड होती है जब उसको एजुकेशन दी जाए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तभी वो एम्पावर्ड फील करेगी कि उसको अच्छी एजुकेशन दी जाए, जो कि मेरे मुझे आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स को, उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन दी। वुमेन एम्पावर होती है जब उसको घर से साथ मिल जाए तो उसकी वो कई गुना एम्पावर हो जाती है। और मुझे अपने पेरेंट्स का साथ मिला और अपने इन लॉज का भी साथ मिला। इसीलिए एम्पावरमेंट ज्यादा होती है कि हम लोग जो कुछ चाहते हैं जिंदगी में वो कर पाते हैं। दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी जर्नी तो काफी मुश्किल रही। मैं प्रेग्नेंट थी तो शुरू किया बिजनेस, और मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपये थे जिससे मुझे बिजनेस करना था। और आप जानते हैं कि एक बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा पहले होना कितना जरूरी है। पर मैंने सिर्फ खुद अपने आप सारा काम करती थी शुरू शुरू में। लेकिन ऊपर वाले की दया थी और अपनी मेहनत थी और घर वालों का साथ था कि मैंने बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस की। विद इन 27 days आई केप्ट वन गर्ल। उसके बाद फिर बहुत ही जल्दी विद इन 6 months मेरा अच्छा बिजनेस चलने लग गया।
और आपको मैं बहुत मजेदार बताना चाहती हूँ। मेरी मदर इन लॉ जो है, बिकॉज आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम, मेरे घर पे ही मैंने एक थर्ड बेडरूम में ही पार्लर खोला था। तो मेरे मदर इन लॉ जब भी किसी कीर्तन में जाती थी तो शी वॉज माई बेस्ट मीडिया पर्सन, और मेरी एडवर्टीजमेंट सारी उन्हें की होती थी। वो बोलती थी कि मेरी बहू बहुत अच्छा काम करती है, आप एक बार कराओगे तो आप कभी कहीं नहीं जाओगे। तो मैं उनका तो मैं सोचती कि वो बहुत बड़ा साथ भी था, लेकिन अपना भी है कि मैं शुरू से बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती, तो मैंने अपने बिजनेस को चलाने के लिए हर मेहनत की, और पूरे जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसको हल किया। 2000 से लेकर आज भगवान की वजह से वी हैव सो मेनी क्लिनिक्स एंड सो मेनी इंस्टीट्यूट्स। और मुझे लगता है कि उसमें मेहनत, दिल से मेहनत और एजुकेशन, दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं अपने आप को बढ़ाने के लिए। और भगवान का साथ तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। वेरी वेल सेड डॉक्टर भारती तनेजा जी। आपकी जर्नी में देखिए आपके पेरेंट्स ने, फादर ने एजुकेशन दी और मदर ने आपको शेप किया। तो दोनों का ही कंट्रीब्यूशन इतना इम्पॉर्टेंट था कि जो स्ट्रेंथ आपकी आई वो फादर ने, क्योंकि आपको एक एजुकेशन दी विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और आपकी जो मदर थी उन्होंने आपके पैशन को विंग्स दिए। एंड फॉर्चुनेटली इन लॉज के यहाँ आपको जो सपोर्ट मिली, तो आज आप जब जो इतने साल पहले जब आपने एक ये स्ट्रगल स्टार्ट करी और आज आप जहाँ पर हैं, जिस मुकाम पर हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है। एंड नॉट ओनली दैट, आपने अपने दोनों बिटियाओं को भी बहुत अच्छे मुकाम पर आज प्लेस किया है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, शेयर हार्ड वर्क, गोइंग ओवर ऑल दी प्रॉब्लम्स एंड देन रीचिंग देयर। तो कहीं पर भी विमेन वाला इश्यू नहीं आया, ये आपकी इनहेरेंट पावर्स थी। तो हम विमेन को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली विमेन भी बहुत आगे चली जाएंगी। जिन जिन मुकामों पर आप लोग सभी ने, यहाँ पर जितने भी एमिनेंट पैनलिस्ट हैं, उन्होंने मुकाम ऐसे ही नहीं हासिल किया। उनको कहीं ना कहीं किसी मेल ने, किसी पेरेंट ने, किसी हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी और उनको मोटिवेट किया, तब आज विमेन वो कर पा रही हैं। और शायद आने वाले फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि इट विल बिकम अ नेचुरल प्रोसेस। जो आज हम बात कर रहे हैं, तो ये सारी की हस्बैंड की सपोर्ट या मदर की सपोर्ट या पेरेंटिंग, तो ये सारी चीज़ें इतनी आगे ज़्यादा संभावना है कि बिल्कुल एक नेचुरल ट्रीटमेंट के तहत जब पेरेंट्स का ट्रीटमेंट होगा, पेरेंटिंग होगी, हस्बैंड एक नॉर्मल नेचुरल, जैसे आपको एक अच्छा परिवार मिला। ज़रूरी नहीं है कि हर समय हर एक को ये सुविधा है या ऐसी परवरिश मिले। तो अभी बहुत कम लेवल पर है जिसको हम इस प्रोग्राम के थ्रू, जो हमारा पब्लिक पुलिस इनिशिएटिव है, इसके थ्रू हम ये अवेयरनेस फैलाएं कि देखिए हमारे पास इतनी इतनी महिलाएं हैं जो इतनी टैलेंटेड हैं, जो आज भी बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, पर उनकी एक स्ट्रगलफुल लाइफ रही है, वो नहीं होनी चाहिए थी। गुड पेरेंटिंग की वजह से, एक गुड सपोर्ट सिस्टम की वजह से, ना कुछ होते हुए भी आज उन मकामों पर स्थापित हैं। और हमारे साथ आज एक और एंटरप्रेन्योर हैं। मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहती थी। हाँ जी। हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि खैर घर वालों का साथ तो है, पर घर वालों का साथ लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी। आप अगर उनका साथ देते हैं, उनकी केयर करते हैं, तभी आप वहां पहुंचते हैं। हस्बैंड में, सबके हस्बैंड में ईगो होती है, कोई ऐसा नहीं होता जिसमें ईगो ना हो। बट आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। आपको उनको इतनी इज्जत देने की जरूरत है कि उनको ये फील हो कि आप उनके लिए मेरी बीवी इतनी अच्छी है, वो जो अच्छी, जिस लोगों को जो पसंद है वो मेरी बीवी है। तो वो फीलिंग जो है ना कि वो मेरी तारीफ से खुश हो। हम लोग, स्पेशली हम लोग की बात करें, बाहर जाते हैं तो लोग फोटो खिंचवाने के लिए, एक एक बार टच करने के लिए, एक फोटोग्राफ के लिए लोग
परेशान हो जाते हैं, किसी भी तरह से कुछ हो जाए तो उनको पीछे हटना पड़ता है। मैं जब किसी भी शो को अगर मैं जज करती हूँ तो ही हैज टू सिट एट द बैक, विच इज रियली रियली सो डिफिकल्ट। कोई हस्बैंड बीवी सामने बैठ के या स्टेज पे जाके अवार्ड ले रही है और हस्बैंड सामने देख रहा है, इट्स रियली डिफिकल्ट। पर उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है कि ही शुड बी प्राउड ऑफ मी रादर देन फील जेलस। तो उसके लिए उनकी ईगो को सेटिस्फाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कि काफी मुश्किल काम है। ये करना जरूरी है। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था कि जब मैंने शुरू किया था तो ब्यूटी को बहुत ही बुरी चीज मानते थे, ब्यूटी बहुत छोटी चीज मानते थे। लेकिन मैं इसमें अपने फादर को कहूंगी कि उन्होंने मुझे एजुकेटेड इतना किया कि मैं साइंस एजुकेटेड थी, आई वाज अ डॉक्टर, सो I could inculcate all my science into my business. तो हम लोग जनरली जैसे लोग फेशियल करते हैं या मेकअप करते हैं या जो कुछ सिंपली करते हैं, आई नेवर डिड लाइक दैट। मैंने हमेशा कोई मेरे पास आया तो मैंने उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेके उसकी जरूरतों के, उसके स्किन के हिसाब से, उसकी जरूरतों के हिसाब से, उसकी बॉडी के हिसाब से सब कुछ करके पूरे इस बिजनेस को पहले डर्मेटोलॉजिस्ट होते थे या ब्यूटिशियंस होती थी, तो इन दोनों का जो मेल करा के ब्यूटी क्लिनिक्स खोले। सो दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसमें अगर मैंने वो एजुकेशन नहीं ली होती, मैंने मैग्नेटोथेरेपी में डॉक्टरेट की, मैंने आयुर्वेदा में की, मैंने इन सब में डॉक्टरेट, इसमें नेचुरोथेरेपी में भी की, तो इतने सारे डॉक्टरेट नहीं किए होते तो मैं उस चीज को कभी अपने बिजनेस में लिया थी। तो आपका एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, इसी से पता चलता है कि मेरी उसी एजुकेशन ने मुझे फायदा दिया कि मैं सिर्फ एक सिंपल जनरल नॉर्मल ब्यूटिशियन ना होके आई वाज ब्यूटी एक्सपर्ट। आई हैड माय ब्यूटी क्लिनिक्स, वी ट्रीट पीपल। और जब हम ट्रीट करते हैं ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको संदेश में जरूर बताना चाहूंगी कि जब हम ट्रीट करते हैं किसी को, किसी के स्किन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व की, एक्ने थे, पिगमेंटेशन थी, किसी के रिंकल्स हैं या किसी के बर्न मार्क्स होते हैं, इवन उनको भी ट्रीट करते हैं। तो जब हम किसी को भी एक बार ट्रीट करते हैं, खूबसूरती देते हैं, तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगती है, वो है ब्लेसिंग्स। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स कमाते हैं जब हम किसी को सुंदर बना देते हैं, किसी की स्किन को सुंदर कर देते हैं, किसी के बाल उगा देते हैं, किसी के बालों को बहुत खूबसूरत कर देते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो वी गेट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। सो वी ऑलवेज वर्क फॉर ब्लेसिंग एंड आई थिंक दोज ब्लेसिंग्स हैव ऑल द टाइम हेल्प मी। चाहे मैंने बच्चों को फ्री पढ़ाया है, चाहे मेरे एनजीओ के थ्रू हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, तो उससे भी इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जब किसी की फैमिली की एक लड़की मेरे पास आती है तो उसको बिल्कुल कुछ नहीं आता होता, वो एक तरह से घर पे बोझ होती है, लेकिन जब वो यहाँ से जाती है पढ़ के, तो वो घर के लिए इतनी कमाई कर देती है कि उनका घर उसकी कमाई से चलने लग जाता है। उसकी माँ को घरों में जाके काम नहीं करना पड़ता। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो सबसे ज्यादा कमाई की है वो है ब्लेसिंग्स की, थ्रू माई बिजनेस एंड थ्रू माई एनजीओ, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। उन्होंने हमें इसी तरह की एजुकेशन दी है, और माई इन लॉज ऑल्सो, जिनका साथ तो मिला, लेकिन उसको हम लोगों को ठीक से यूज करना। मदर इन लॉ किसी की तभी प्यार करती है जब आप उनको बहुत ही ज्यादा खास तरीके से इम्पोर्टेंस दें। तो इसमें दोनों का हाथ रहता है कि हम अपने इन लॉज को, अपने हस्बैंड को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दें कि उनको जब आपको लोग इम्पोर्टेंस है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं इससे। डॉक्टर भारती तनेजा वेरी राइट कि हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और ये संस्कार सिखाता है कि हम ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट में अंतर ला पाएँ या समझें। तो ईगो एक बहुत बोलते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को रोकती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट, जब हम अपने हस्बैंड की, फादर की, मदर की रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि सबको समझ में भी आता है, तो जाहिर सी बात है कि हमें भी वो प्यार मिलेगा, वो रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ईगो से ज़्यादा मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। ईगो हो सकता है कि ईगो जो है वो एक नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है,
और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट देते हैं तो हम इक्वालिटी के उस पर जंक्चर पर देते हैं, दैट लुक, you are like my mother, you are like my father, and a husband, you are like my partner, and I respect you, and I am a very talented person, and that is where you have reached, because आपकी जो पेरेंटल ने आपको बताया, एक बोलते हैं कि रेजिलियंस, पावर ऑफ रेजिलियंस भी बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझें, ह्यूमन डीलिंग्स को बहुत बारीकी से समझें, उसमें रिस्पेक्ट करें। तो जब बच्चे को इस टाइप की भी पेरेंटिंग मिलती है, तो इसीलिए जितनी भी सक्सेसफुल विमेन हैं, उन उनकी मेजर जो सक्सेस के बिहाइंड जो क्रेडिट है, वो ऑब्वियसली पेरेंट्स के ऊपर जाता है, और पेरेंट्स उसी को रूप देते हैं, और उसी की वजह से आज आपने एक छोटे से, जैसे आपने बोला कि ब्यूटी सेगमेंट को बहुत आज से 30, 35, 40 साल पहले ऐसे देखा जाता था। एक छोटे से चीज़ को आपने एक बहुत ही टेक्निकली एंड एक चेन ऑफ क्लिनिक्स बनाया, उसके अंदर टेक्निक्स डाली, और उसको आज आप इंसान को ब्यूटीफुल बना रहे हैं बाहर से, और आप अपने व्यवहार से उनके अंदर की सुंदरता को भी पटल पर लेके आ रहे हैं। तो ये एक आपकी एक जर्नी है जो कि एक इंस्पिरेशन है। जैसे कि हमने कहा कि एक जर्नी जो होती है एक सक्सेसफुल वुमेन की इज़ इंस्पिरेशन, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, और जिस मुकाम पर आप सभी काम कर रहे हैं, कनिका जी भी आज काम कर रही हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, और मेरे साथ आज एक और इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे इस पैनल पर हैं हम सबके साथ। उनका नाम है बबीता खन्ना जी, जो कि वैक्स में, जो कैंडल मेकिंग में हैं, उन्होंने इंडस्ट्री स्थापित करी। तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगी कि वो हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव यहाँ पर शेयर करें, एंड एज अ एंटरप्रेन्योर वो क्या समझती हैं कि फाइनेंसेस कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, पेरेंटल सपोर्ट उसमें कितनी इम्पोर्टेंट होती है। So, thank you, Sandaji, for a very good introduction. And starting with women empowerment. So, I would go back to my childhood when my father and mother has actually, they have raised me like a boy. So, I have got a brother. So, we two are two siblings. And they have never differentiated between me and my brother. And going back to 12th class, when I used to get up because my father was in defense, so we had he had a transferable jobs, and I have been posted to many different schools. So in last when I was in 12th class, so we were in Chandigarh, where I used to get up at 4:30 a.m. in the morning. I mean 4:30 a.m. I had to start from home to attend a 5 o'clock tuition, because that guy was he was the most talented maths teacher in Chandigarh in Punjab University, and he did not have any other slot. So it was dark, completely dark at I mean you can see the winters of Chandigarh. So going back from there, and now I can take all the flights during night time or coming back to, and just a small introduction. I have worked for 15 plus years in industry, and starting from Ericsson, Hewlett Packard to NIIT with my last job. So going back to women empowerment, so my first thing would be that yes, women are, as Sir said, Maheshwari Sir said that in Sanatan Dharma women were equally treated, and in fact Durga Ma, they were given more important. And taking back to this, so yes, women are empowerment, and nowadays, in fact, women are getting a lot of support from government as well. So there are a lot of government schemes which are actually promoting women. There are PSUs who have has to buy 2% from women. So there are a lot of schemes that government is supporting. And for starting an industry, yes. So I mean, going back for a woman, if you go back 20 years back, at that time, if woman is starting her own industry or her own manufacturing unit in industrial area, so nobody would have thought like that, because nowadays, now also I'm the only female entrepreneur in like in the whole lane. All rest are owned by men, and the workers are men. So if I say out of 100, I would say only say 3 or 4 are women entrepreneurs. That too are jointly owned by their husbands or brothers.
And if I see the female staff, yes, there are a lot of female staff. Around 30% are 35% are women staff. So yes, now you can at least think of putting your own manufacturing unit. From past 20 years, this change has come. And yes, because my parents have brought me like that, so that I can go at 4:30 a.m. starting from my home, and I can set up an industry now in a male dominated area. So what exactly like the finance, because an industry requires a lot of finances. So how far were your parents supportive in this? Because male child, they're, anybody, be it a husband or your parent, they feel that if we, invest on a male child, that would be very convenient for them. And Yeah. and for a female, they think twice. Okay, should we, if she fails in her profession, she has to go to the other house, other Mm. family. So what was that experience, and how did you get that kind of a help? So my parents have never differentiated between me and my brother, and we both were equally financially supported. And in fact, I have worked for like 15 plus years, so I had my own finances when I started the industry. But yes, since I mean, when you're starting a new thing, new industry, so you have to spend first in raw material, then you have to buy the equipments, you have to pay the rent, you have to invest in marketing. So yes, I had taken support from my mother, my brother. So I'm not married, so I'm still with my parents. And so yes, they have supported me a lot financially as well as emotionally. So after working like for 15 plus years, then I started my own venture of events company. But it worked very well for 3 4 years, but then corona came and all events, everything got stopped. So since I was on a senior position, so I started the industry in a very good note, and started the events company on a very good note, and I started getting events and everything. But then since corona came, so 2 3 years no work. So then I thought of starting something manufacturing or something, FMCG, which is consumable, which even in lockdowns people are going to consume. So I have made scented candles, which are pure organic beeswax candles with essential oils. And these candles are no are without any chemicals. We do not use any stabilizers, no artificial fragrance. So it actually cures people, and it actually give a lot of health benefits when it is inhaled. And I myself has tested on myself, or have tested on people who are kind of suffering from somebody suffering from a surgery, or somebody has got inflammation, or somebody has got menstrual problems. So different essential oils which cures these all these things. And since I am connected to my roots, and I wanted to somehow bring Sanatan Dharma also, in a modern setup like this. So I have made 4 candles which are spiritual candles as well. So these candles are with herbs, 55 plus herbs we use. One is Durga Sapshati candle, so which is like made on Durga Sapshati book. So if you go through the book, I have noted down at least 40 herbs like Brahmi, Bahira, Shugandha, Shatavari, all these herbs which are liked by Ma Durga. And each herb has got its own benefit to human body, because these all herbs are used in havans. So I have made 4 candles which are like herbal, Durga Sapshati, Neelkant, Siddhi Vinayak, and Ashtlakshmi. Different herbs are used in all different candles. And so I wanted to join a modernization with the Sanatan Dharma, because somehow we have forgotten our roots, why the havans were conducted in house, why we used to give ahutis, because it used to clarify, it used to give, purify the aura. So yeah, that's it. Yeah, so that means that you are doing a wonderful job, whereas organic thing is, because organic is what we need in today's pollution, because there's a lot of pollution and organic products are required. And you are doing a wonderful job. And being an entrepreneurship, you have given a job to yourself, you are giving jobs to many women. And it is not a easy thing to generate jobs, so definitely your parents have nurtured you, and has that entrepreneurship quality they have brought in out from you and put it to practical use.
And I would now request Mr. Vimal Vakliju, who has been a very essential part, a very eminent personality. He's a wonderful person who is also doing a social job. Uh, by enlightening people about telemedicines, about artificial intelligence, which is now a very major project with the Indian government and especially Modi ji. And I would like to now ask Mr. Wakliju that exactly what is his views regarding the parenting. Thank you, Sandhya ji. Of course, there are two things. The two topics of today's subject, they are related also: women empowerment and parenting. Of course, first I'll talk about parenting since you have asked about it. So basically, the thing is that you have to be a leader when it comes to your children. If you want your children to follow a particular path, uh, you have to be a role model. You can't expect to be a smoker and tell your children not to smoke, or have liquor and expect your children not to have. So you have to be a role model. I think that is the first condition of inculcating various you can say do's and don'ts in children. That's the first part. Second is, all children, every child is like a flower, and we should allow it to flower naturally. You cannot thrust your ambitions on your children. I remember I worked in the domain of telecom, and there were many of my colleagues at a junior level who always had one thing in mind, that they have to make the children, telecom engineers, and make them join the Indian telecom service because they had seen some of us there. So this might be good for some, but at the same time, it may not let people flower properly, because every child is different. If, and that's a very important thing, to let children flower on their own. You just be a support. Go on watering that. I mean, we have heard Kanika, her experience with her father, mother, how exactly they took care, or Bharti ji has also talked about it. So that is what's needed. You need not trust your opinion. And I think that's exactly what I also did. My both children, they were engineers, followed my line. But at one stage, my younger son said, yes, enough of my engineering and my job. Now I want to enjoy life. I want to be in music. And he's doing very well in music. I said, fine, do it. And it has been a challenge for him, but ultimately he has found his place, his slot, and he's doing well. So that is what I feel parenting, is important. Let your child flower. Yes, that's a very important point that you have brought up. That let the child explore first, and as a parent, just give a supporting hand. That's very important. Absolutely. Otherwise, the child will not be able to, go through his own journey of knowing himself or herself. Mr. Bakleju has very rightly said and has pinpointed out the thing that be with the child. It is not only about just supporting financially or just giving a good school. It is about being with the child, the mind, the thought process, the emotional aspect, and letting the child flower so that the child can explore his or her own qualities. And very important and very essential for for a female child, because female child due to certain set norms are unable to express themselves. So either a mother or the father, one of the parent, has to be close to the child to know exactly what is going inside the child. So all the successful women who are here today with us, they are all very well known in their own field,
and they have also emerged that way because their own journey was supported mentally, socially, and emotionally by one of the parent, one of the helping hand, be it a male or a female, irrespective of gender. Because when we are talking about parent, it can be any parent who has a time. Because sometimes the parents are busy, so sometimes we can have the mother as a supporting hand. Sometimes we can have a father as a supporting hand. So what I feel is that from the very first day, girls and boys should be nurtured, loved, and cared for equally. And then your relationship with the child is the foundation for their development as a parent. So children may develop at different rates, but the development milestone for boys and girls are the same. Like playing, reading, eating together, it will help the child to learn and develop regardless of gender. And that is what we are talking here. It is women empowerment, but along with it, the we are talking about not recognizing the gender discrimination when it comes to attending school, playtime, or any household chores. Boys and girls should participate equally. It is not that that boy has a particular job, he cannot cook. Of course, cooking is a very essential part of a human being. So, and then in this society, it is generally seen that the parents are using, like, you are like a girl, you should not be, bossy, you should not go out there. And so these kind of harmful language inside the domestic home can also impact the mental level of the child. Because if the child is gets to hear such words, then there is bound to be a discriminatory growing up in the personality too. And then gender socializing is also very important, that women can socialize with everybody. There should not be a taboo or tag that you are a female, you cannot go here, you cannot interact like this, because we are not treating them as a human being. So it is very important that right from the birth to the early child to the growing identity, the identity and sexuality and exploration of personal beliefs and values should be downfiltered from the parents to the children, but should not be imposed. Their own aspirations should not be imposed. So role of parents are very important in rearing the child. That is what this discussion has brought about. And so, when we say that parents should refrain from assigning and asserting identities into children, is also very important. Instead, I think that we should encourage children to develop their own sense of identity and agency, as Mr. Wakliju has said, Mr. Maheshwari ji has very well brought out. And in fact, it is his initiative, because he has grown a girl child, and he knows that growing a girl child, uh, irrespective of all these discrimination, has made him a proud parent. All the eminent guests here today are proud parents, and they're not only parenting their own children, but their parents have also given them that platform. And parents should promote positive gender norms, and treatment of children and behavior inside the home is also very important. And what I feel is that the essential knowledge skills is very important, and fathers should uh, because daughters are more close to the father. So and they are free with their mother. So those aspects, if the love and care at that level is given, then I think within few years we will be the society will be at a level where we will not be discussing about parental empowerment. We will be discussing that so and so human being has achieved so and so level. So, but now there is a need for women empowerment and this gender discrimination, because it is still there in the society. Very few households are able to give this practically and attain
and let the children attain to that level. So that is one thing. And if anybody feels that out of this discussion we can further do something more practically, because inside the household, outside the household, there's a lot of work that needs to be done. And for that work, definitely we all have to work towards it. And On this note, we end our discussion. So my point is that since we are like born and brought up in middle class or upper middle class families, so we have got that kind of ecosystem who has supported us to become MBA or become a doctor or become a actress. So our parents had that kind of financial support, a financial well-being that has supported us to excel in our fields. Now going back to people who are underprivileged, who are under poverty line, or who are say L1 grade. So if a woman like bee celebration, like we have got a factory which has got all women workers. Now if my all workers women staff are people who are like from a very low financial background. So if a woman opens a manufacturing facility, she can employ all women and can give employment and can make them empowered, can make them financially independent. And empowerment, women, how women are empowered? First and foremost, they have to be financially independent, right? So if they are financially independent, they would not hear from, they would not take absurd things from your husband, from their in-laws, because they are financially independent. Now, one thing is that they are going to learn new things. So my only one what I want to say is that more women should come in industry or setting up their own manufacturing, or setting up their own say parlors, or their own businesses, who employs the women staff. Because yes, we are blessed, we are even if had I not been doing the business, I would be doing the job. So anyways, I'm empowered right from the childhood. But people who are under poverty line, they should be brought under the scanner, they should become empowered, so that their husbands, their children, their in-laws who treat them badly should come in front. That should stop. Yes, yes, that's Well, a. I've also got a couple of points I want to mention about that. You know, I mean, if we have the time, another couple of minutes, do we have? Yes, yes, definitely. Yeah. You see, one good thing about this government is that, as was pointed out earlier also, that most of the schemes are in the favor of women. And it's very important to have a uniform civil code in the country. As we discussed last time, I have an experience of Meghalaya. I've stayed there in Shillong, and you should see the Khasi society. They are empowered. The women, the property rights are with women. So if women have equal property rights, it makes a lot of difference. I mean, theoretically, yes, we may say that, yeah, equality, equality, but this practical thing makes a difference. And that's why the government has, in all the housing grants that they have provided to people from, the poor people with background, which Babita ji was mentioning, this is the best way to empower women there. That's what I wanted to say. That these practical things will go a long way. And I also wanted to quickly mention about what Maheshwari ji mentioned, that there were challenges because of the people who invaded the country. And before that, even Adi Shankaracharya, because women have 360-degree thinking power, Adi Shankaracharya faced defeat in two places throughout India. One was in Kashmir and one in Varanasi. And both the places, he faced a defeat at the hands of women. Because in Kashmir, till he reached Kashmir, he didn't believe in Shakti. He was, he was a
sort of, and that's all. But she made him understand what the power of Shakti is. And besides that, Bharti ji mentioned that she is from a Sardar family. I want to mention here also that Guru Gobind Singh ji saw the potential of Durga ji, and he was a great bhakt of Durga ji. Shivaji got his sword, they say, from Tulja Bhavani when he defeated the Mughals. So, in India, women have been sort of respected, worshipped. But what happened during a particular phase, even in Kashmir, women were told to cover their face with mud so that, all those Pathans and other people are not attracted towards them. These things happen later. There are many things, but since the time is short, I just wanted to mention this. Thank you. Yeah, I would just like to share my personal experience. Like Mr. Wakleju has said that Shillong, he had the opportunity to stay in Shillong and very well aware of the Shillong condition. I had the opportunity to study in Shillong and stay there for a couple of years, and my primary education was there. And I was also very impressed by their education system and the women empowerment, because I found every woman in the market, every shop had a woman, and they were earning, and whereas the males were not earning that much. So the kind of freedom and the economic freedom and the atmosphere which Shillong had down, I think 34 years down when I was there, was wonderful. And definitely we have the property rights, because एक मायके से ससुराल, न ससुराल में जगह है, न मायके में प्रॉपर्टी राइट्स हैं, तो विमेन कहाँ जाएगी? ठीक है, क्योंकि उसके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं जब वो शादी के लिए, शादी के बाद वो दूसरे घर में जाती है, तो वहाँ शी कैन बी सेट कि नहीं नहीं, यू कैन गो आउट ऑफ द हाउस, एंड शी मे नॉट गेट, एंड दी कोर्ट एंड प्रोसेसेस आर टू लॉन्ग, तब तक तो उसकी ज़िंदगी निकल जाती है. और पेरेंटल हाउस में अगर ब्रदर है, देन देर इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज भाभी है, तो देर विल बी द प्रॉपर्टी राइट, डेफिनेटली वो लोग फर्स्ट हैंड ले लेते हैं, हालांकि आजकल सरकार ने हमारी बहुत कुछ किया है, बट जो प्रोसेस है, सिस्टम्स है, वो इतना ज़्यादा ड्रजरी कर देता है. मान लीजिए कि पढ़ी लिखी महिला चली भी गई, हमारे पास बहुत सारी महिलाएं जो कि, जैसा कि भारती तनेजा जी ने कहा कि बहुत सारी, क्या हमारी जो आबादी है, आपको मालूम ही है कि बहुत सारे पॉवर्टी लाइन में है, विमेन की शिक्षा जो है अभी उस लेवल की नहीं है, अवेयरनेस उस लेवल का नहीं है. तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, रूट लेवल पर क्या कर सकती है? तो पब्लिक पुलिस का एफर्ट जो है वो इसी के लिए है. ताकत जो हम यहाँ पर 3 महिला बहुत ताकतवर बैठी हैं, जो अपने अपने फील्ड में उन्होंने अपने एक ताकत का परिचय दिया. ताकत का मतलब वैसी वाली ताकत नहीं, अपनी इंटरनल ताकत का, हौसलों का, उस मुकाम पर पहुंचने का. जैसे कनिका जी हैं, बबीता जी हैं, और भारती तनेजा जी हैं, और हम सब उसी के लिए ही काम कर रहे हैं. माहेश्वरी जी जो हैं, वो आपको मालूम है, बगैर किसी भी पर्सनल एजेंडा को या किसी भी चीज़ से विरक्त होके पब्लिक पुलिस के लिए अथाह काम कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है कि आज हम सब यहाँ पर बैठ के ये चर्चा में शामिल हुए हैं. ये केवल और केवल माहेश्वरी जी को पूरा का पूरा श्रेय जाता है कि आज हम ये इस माध्यम से हम शायद लोगों तक ये अपना मैसेज ऐसा पहुंचा मत कहिए, पाए. नहीं नहीं, ये ये संध्या जी, नहीं ऐसा नहीं, मत ये कहिए आपका, प्लीज. नहीं, ये आपका भी एफर्ट है. एंड वाकली जो भी मेल हैं, देखिए आप लोग दो बहुत ही समाज के लिए काम कर रहे हैं, और वाकली जी तो निश्चित रूप से टेलीमेडिसिन, बापनू साहब का बहुत सपोर्ट है. बहुत सपोर्ट है. ही इज द जैम ऑफ द पर्सन. पर यस मैं यस. Yes, yes. एक ही बात डॉक्टर कहूंगा डॉक्टर पेरेंटिंग में, संध्या, मैं कि एक पेरेंट्स वक्त बीच शुड नॉट में बी हैं. एक मिनट में एक क्या मिनट कह मैं रही? लेना चाहती बीच में.
हम बार बार विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और हमने सबने कहा कि वी ऑल आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। तो जैसे कि बबीता भी कह रही है, मैं भी यही कह रही थी कि हम लोग को वुमेन को एम्पावर करने के लिए एजुकेशन देना इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में स्किल सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है, सो दैट वो जब कोई भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है ना, तो फिर तो वो अपने आप पे एम्पावर्ड हो जाता है। तो मैं इस बात में बहुत खुशनसीब रही हूँ कि मुझे इतने सारे लोगों को मैंने हजारों लड़कियों को स्किल सिखाया है, यानी कि ब्यूटी के कोर्स सिखाए हैं, और वो आज बहुत बहुत अच्छे से अच्छा काम कमाई। कर रही है तो भारती हम जी, लोग बहुत अच्छा यही काम कर रही चाहते है। हैं, जी मैं यही चाहती हूँ कि हम सब लोग मिलके, अगर जितने भी अंडर हाँ, प्रिविलेज है उनको बस स्किल सिखा देना। मैं भी एक बात कहना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छा बात कही भारती जी की स्किल्स सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं भी बहुत बार अनाथ आश्रम में जाके बच्चों को एक्टिंग स्किल्स सिखाती हूँ, क्योंकि अगर हमारे घर के बच्चों को नाचना गाना पसंद है तो उन बच्चों को भी बहुत पसंद है। और बहुत लोग बच्चे मुझे कहते हैं कि मुझे एक्टर बनना है मैम, मेरी आप हेल्प करेंगे, तो वो भी मैं कोशिश करती हूँ। मैं खुद एक मेडिटेशन करती हूँ और ओशो की फॉलोअर हूँ। तो मैं अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को मेडिटेशन सिखाती हूँ शाम को, संडे को, ताकि वो एक अपने अंदर की एक शक्ति को पहचाने। मेरी माँ और मेरे पिता हमेशा एक चीज मुझे हमेशा कहते हैं कि कोमल हो पर कमजोर नहीं हो, शक्ति का नाम ही तुम नारी हो। तो वो कमजोर कोमल हैं हम, क्योंकि भगवान ने हमें इसी तरह से डिजाइन किया है, लेकिन कमजोर नहीं है। कोमल है, कमजोर नहीं। शक्ति का नाम ही नारी है। और जो शक्ति आप महसूस कर रही हैं भारती जी, और जो मैं महसूस कर रही हूँ, और जो अलग हम सब महसूस करते हैं अपने अंदर, अगर वही हम स्प्रेड कर दें तो वो स्किल्स और वो सब, वो बहुत सुंदर तरीके से आप किसी के अंदर भी बाहर ला सकते हैं। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगी अपने फादर का, अ, जो इतने अच्छे अच्छे लोगों को हर वॉक ऑफ लाइफ से लेकर एक जगह लाकर उन्हें चर्चा कराएं, यूट्यूब पे डालें, लोगों को स्प्रेड करें, ताकि कहीं ना कहीं एक विश्वास है जो मेरे फादर का है और पब्लिक पुलिस को बनाने का, कि अगर सोच बदलेगी तो इंसान भी बदलेंगे। और इसी के बात में थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी का अपना समय देने का। बहुत सुंदर कनिका जी। आप भी बहुत, क्योंकि आप हटके भी काम कर रहे हैं, आप अपने प्रोफेशन जो टीवी इतना चैलेंजिंग है उसके हटके आप एक आध्यात्म लेवल पर हैं, एक आध्यात्मिक काम कर रही हैं, एंड बच्चों के साथ भी बहुत सारा काम कर रही हैं। तो ये आसान नहीं होता, अपने एक टाइम को निकालना, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको मैनेज करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पेरेंट्स की देन है, एंड डेफिनेटली पब्लिक पुलिस का यही एफर्ट है। और आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और डेफिनेटली माहेश्वरी जी जो सीईओ हैं पब्लिक पुलिस के, एंड वाकले जी जो आईटी एंड टेक्निकल एंड काफ़ी सारी चीज़ों को अपने शौकिया तौर पर समाज में महिलाओं के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सबको कि आप लोग इस प्रोग्राम में आए, और शक्तियों को धीरे धीरे जुटाकर हम एक रास्ता लें जहाँ पर स्किल और एजुकेशन, स्किल, पर्सनालिटीज़, और उसको उस मुकाम पर लेकर जाएं कि एक दिन दुनिया ये कहे कि नारी नहीं, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, एक मानव हैं, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग। तो इसी के साथ मैं आज का जो प्रोग्राम है यहीं समाप्त करती हूँ। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आए और हम इस चर्चा में जुड़े, और हम शायद आगे और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आए आप सबके सहयोग से, और इसको हम धरातल पर भी उतारें। धन्यवाद थैंक यू। माहेश्वरी जी, धन्यवाद वाकले जी, थैंक यू। धन्यवाद थैंक कनिका जी, यू। धन्यवाद संध्या जी, भारती भट्टू तनिका साहब, जी एंड बबीता जी, बबीता जी। भारती जी एंड